Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji, Vice President Rahul Ji, members of the CWC, members of the AICC, DCC presidents, colleagues on the dais, friends, we assemble here as the 2014 Lok Sabha elections approach. We meet today to send a clear signal that the Congress is ready and prepared for the battle ahead. These elections will see a sharpening context between conflicting ideologies, between competing interpretations of the past, and between clashing visions of the future. It will be a battle for India as it was conceived by our founding fathers and as we cherish it. It will be a battle for the preservation of our age-old secular traditions, traditions of diverse communities living harmoniously in one composite national identity. Whenever we gather at meetings such as this, we pause and reflect and recall with pride what we stand for and what our legacy is. And what more appropriate moment for this than the 125th birth anniversary year of Jawaharlal Nehru. It was he who had said soon after independence that confronting danger and facing up to adversity is the Congress way. That message should resonate more loudly now than ever before. The Congress has faced many difficult times in the past, much tougher than today, but we have never lost heart. We have repeatedly demonstrated our resilience by remaining committed to our vision, to our values, and the beliefs that have always sustained us. Our party is woven into the fabric of this nation from its very conception as a modern nation state. This great country, this India, is woven of the rich individual strands of our regions, languages, religions, traditions, and communities through the ages. Yet, its vibrant beauty can be seen only as a whole, a single seamless fabric, much greater than the sum of all the strands. Today, I want to address some key threats to the fabric and the tensions and forces that are stretching it to breaking point. I also want to highlight how our party and our government have, over the last decade, responded to these threats through some key policies and programs. Let me start with the first, disparities. In spite of impressive economic growth, for which we can justifiably take credit, the fact is that disparities are still painfully widespread. Growth is essential and must be sustained, but rapid growth alone cannot address the problems arising out of continuing disparities. Tackling these is not just a matter of social justice, but more importantly, an existential necessity and a moral imperative.
If the basic needs of large sections of our society are not met in tangible measure, if the growing aspiration of our people are not met in substantial measure, the fabric of our society will be stretched and torn. That is the ground where despair leads to unrest and breeds extremism as the only hope for change. This unrest also gives various vested interests the opportunity to pursue their selfish purposes. So it was that we decided on Mahatma Gandhi Narega, which has provided livelihood security to 1 in 4 rural households in the country and has ensured that rural wages have increased manifold. So it was that we introduced the Forest Rights Act in 2006, which has provided new future for lakhs of tribal families. And so it was that we financed the building of over 4 lakh kilometers of all-weather rural road in different states. So it was that we ensured that procurement prices for rice and wheat more than doubled over the last 10 years, triggering new prosperity for our Kisans. And so it was that very recently we got the historic Food Security Act passed that will provide highly subsidized food grains to 2/3 of our population. And the new Land Acquisition Act that will ensure far higher compensation to our farmers. Now let me turn to corruption. At Burari, 2 years ago, you may recall, I had presented a 5-point action plan to combat the widespread menace of corruption at all levels. Since then, the Lokpal and Lokayukta Act have been passed in Parliament. All Congress-ruled states are committed to a new, more powerful and independent Lokayukta by the end of February 2014. Crucial bills, which are powerful instruments in our fight against corruption, are pending in Parliament. We will do our utmost to get them through when Parliament reconvenes next month. And I appeal to all parties to rise above political consideration and pass these bills. The Aadhaar initiative, Aapka Paisa, Aapke Haath, has been launched in many districts. And when fully operational, it will ensure the elimination of the corruption that people experience in their daily lives, especially in the delivery of subsidies, pensions, wages, and other government benefits. We are the party that is responsible for the historic RTI Act. We pursued this because we believe that ultimately in transparency lies the solution to the problem of corruption. The RTI Act is the single most important reason why citizens of our country feel empowered to fight corruption. अब मैं कुछ बातें हिंदी में कहना चाहती हूँ। एक और खतरा जो हम अपने आसपास देखते हैं वह है अफसरों की गैर बराबरी। यह समाज के उस रवैये से पैदा हुआ है जिसकी निगाह में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं और आप किसको जानते हैं, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं और आप क्या कर सकते हैं। इस गैर बराबरी को मिटाने का एक सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है।
इसलिए हमने शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया है। इसीलिए हमने कमजोर वर्गों की लड़कियों और लड़कों के लिए खास तौर से दलित, आदिवासी और अक़लियत के बच्चों के लिए वजीफे की व्यापक योजनाएं शुरू की है। इसीलिए हमने सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के दोपहर के भोजन की योजनाएं शुरू की है, जिससे स्कूलों में लड़के लड़कियों की तादाद में बेमिसाल बढ़ोतरी हुई है। बच्चों की जगह स्कूल ही है और उन्हें वहां होना ही चाहिए। इसीलिए पिछले 5 वर्षों में हमने काफी तादाद में नए विश्वविद्यालय और अनेक उद्यमों से संबंधित नई संस्थाएं खोली है, जैसा कि इतने समय में पहले कभी नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करती हूँ कि अवसरों की यह गैर बराबरी की हमारे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव का एक सबूत है। पिछले कुछ वर्षों में हमने महिलाओं के लाखों स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद की है, जो सारे देश में करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में बेहतर बदलाव ला रहे हैं। शादी के बाद महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के खिलाफ ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया है। हमारा संसदीय लोकतंत्र कई स्तरों पर फलता फूलता है। राज्य सरकारों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार से इतनी तरह की और इतनी ज्यादा सहायता कभी नहीं मिली जो इस दौरान हमारी केंद्र सरकार ने दी है। राजनीति मतभेद को किनारे रखते हुए इस नई साझेदारी से एक बड़ी तादाद में विकास योजनाएं चली और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या किसी और सरकार ने इससे पहले इतना कुछ किया है? आप बताइए। नहीं किया है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तमाम मुश्किलों और विपक्ष की अनेक बाधाओं और गैर जिम्मेदार रवैये के बावजूद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहकर पूरी गरिमा के साथ 10 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है। तमाम दुष्प्रचार, गलत बयान और झूठे आरोपों के बावजूद हमारी पार्टी और सरकार मजबूती के साथ जमीन पर अपने पैर जमाए रही और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अडिग रही। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूं कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है, वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। कांग्रेस का रास्ता हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है। उनकी मिलीजुली राष्ट्रीय पहचान के गर्व के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वासों की अनेकता को आदर देने का रहा है। यही भारत की स्थायी परंपरा है। और हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है? मैं आपको बताती हूं क्या है, आप खुद जानते हैं।
यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए ये एक गहरी आस्था का विषय है। तो साथियों, देश में एक उथल-पुथल है। तेज सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर में ये लाजमी है। जब आकांक्षाओं से भरी हुई एक नई पीढ़ी चाहती हो कि उसकी आवाज सुनी जाए, तब यह उचित ही है। हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता ने काफी हद तक सब जगह, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों, लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है और अपेक्षाओं को उजागर किया है। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों से एक बहुत बड़ा नया मध्य वर्ग उभरा है जो परिवर्तन की मांग कर रहा है। कई बार यह लगता है कि इन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में कुछ कमी रह गई है। इसके लिए मैं अपने महान संगठन की तरफ से, जिसका नेतृत्व करने का सम्मान मुझे मिला है, मैं सभी लोगों से कुछ नरम रुख अपनाने का अनुरोध करती हूँ। लेकिन किसी को भी, और उन लोगों को तो खास तौर से नहीं जो हमारा सिर्फ विरोध करते हैं, ये एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक एक बड़ा परिवर्तन हमारी पार्टी के ही माध्यम से हुआ है। हमारी पार्टी ने ही देश में ऐसे लोकतंत्र की बुनियाद रखी है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है। हमारी पार्टी ने ही अपने देश को कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और उद्यम का शक्ति केंद्र बनाया। हमारी पार्टी ने ही अपने करोड़ों देशवासियों को गरीबी से ऊपर उठाया है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गरीबी का ये अभिशाप हमारी धरती से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। हमारी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है
जो चुनाव में चाहे जीते या हारे, लेकिन वो हर गांव, हर बस्ती और हर मोहल्ले में साफ साफ मौजूद है। हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने बिना किसी निजी स्वार्थ के अपनी सुख सुविधा और किसी पुरस्कार की परवाह किए बिना पार्टी को शक्ति दी है, आशा और आत्मविश्वास दिया है। ऐसी सभी कार्यकर्ता जो कभी हार नहीं मानते, वे हमारे निष्ठावान सैनिक हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूं। साथियों, हमने अपने लंबे और रंग बिरंगे इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने जीत भी देखी है और हार भी झेली है। राजनीति में इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी एक खूबी हमने कभी नहीं छोड़ी और वह खूबी है अपने को हमेशा जीवंत बनाए रखना और बदलती हुई परिस्थितियों में जोरदार तरीके से आगे बढ़ना है। एक और भावना है जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है और वह है हमारी लड़ने की हिम्मत। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारा यह हौसला और ज्यादा मजबूत होगा। आने वाली चुनौतियों का हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम सबका संकल्प एक होगा। हम सबका संकल्प एक होगा। हम सबकी वाणी एक होगी। हम सबका कर्म एक होगा और संघर्ष में हमारी जीत होगी। जय हिंद।